بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ریڈیو میں خوش آمدید۔ یہ کہانی سیف نامی ایک کسان کی ہے۔ وہ ایک محنتی آدمی تھا۔ اس بات کا اندازہ اس کے ہرے بھرے کھیت کو دیکھ کر کیا جا سکتا تھا۔ زرخیز زمین پر دور تک پھیلے ہرے بھرے کھیت دکھنے میں اتنے خوبصورت آنکھوں کو بھلے معلوم ہوتے تھے کہ جو لوگ شہر سے اپنے گاؤں رشتہ داروں سے ملنے کے لیے جاتے وہ خاص طور پر ان کھیتوں کا نظارہ کرنے کے لیے آتے۔ اس کھیت سے پیدا ہونے والا پھل اپنی تازگی اور اعلیٰ معیار کی وجہ سے مشہور تھا۔ سیف اپنی بیوی ریما کے ساتھ بہت اچھی زندگی بسر کر رہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے بے حد محبت کرتے تھے۔ اگر کسی چیز کی کمی تھی تو وہ اولاد تھی، جس کے لیے وہ دونوں بہت تڑپتے تھے۔ ریما ماں بننے کے لیے بہت سارے وظیفے کرتی تھی اور 5 وقت دعائیں مانگتی تھی، مگر جیسا کہ ہر کام کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، شاید وہ ابھی دور تھا۔ ریما شوہر سے ضد کر کے مزاروں پر جا کر دعا کر رہی، حالانکہ سیف نے بڑا سمجھایا کہ خدا نے گھر پر مانگنے سے بھی تیری دعا سن لینی ہے، مگر وہ نہ مانی۔ 2 سال یوں ہی گزر گئے۔ سیف نے سب قسمت پر چھوڑ دیا تھا، مگر ریما اب بھی پر امید تھی اور جہاں بھی کسی حکیم کا سنتی علاج کے لیے پہنچ جاتی۔ شروع میں سیف نے اسے نرمی سے سمجھا کر منع کرنے کی کوشش کی، مگر وہ اپنی دھن کی پکی تھی، سو سیف نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ اس سال جب پت جھڑ کا موسم رخصت ہوا اور ہری ٹہنیوں پر نئے پتوں نے جگہ بنائی، سیب کے درختوں کی قطار میں آخری درخت پر اسے ایک عجیب پھول نظر آیا۔ سیف کا سالوں کا تجربہ تھا، اسے ہر پھول اور پودے کی پہچان ہو چکی تھی۔ یہ پھول وہ پہلی بار دیکھ رہا تھا، تبھی حیرت کا شکار تھا۔ وہ یہ پھول اٹھا کر گھر لے آیا اور ریما کو دے دیا۔ ریما نے پھول کو سونگھا اور اس کی دل فریب مہک کو اپنے اندر اتار لیا۔ اس مہک نے جادوئی اثر کیا تھا۔ اسی سال ان کے گھر ایک چاند سی بیٹی نے جنم دیا۔ ان دونوں کی سالوں پرانی مراد پوری ہوئی اور انہوں نے سکون کا سانس لیا۔ وہ دونوں بہت خوش تھے۔ انہوں نے پورے گاؤں میں مٹھائی تقسیم کی۔ کئی دن تک سیف نے لوگوں میں مفت تازہ سبزی اور پھل تقسیم کیے۔ یہی نہیں، کئی غریب لوگوں کی مالی مدد بھی کی۔ سیف اور ریما کی بیٹی روحا 2 سال کی ہوئی تو ٹھیک پہلے کی طرح اس کے کھیت میں اسی سیب کے پیڑ کے درخت پر ٹھیک سے وہی پھول ملا جیسا روحا کی پیدائش سے پہلے ملا تھا۔ سیف وہ پھول لے کر خوشی خوشی گھر میں بیوی کے پاس آیا اور اسے وہ پھول دے دیا، جسے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی اور اس پھول کو بھی سنبھال کر اپنے پاس رکھ لیا۔ اس پھول کی خوشبو پہلے پھول کی نسبت زیادہ تیز اور خوشگوار تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس بار اس کی جو بیٹی پیدا ہوئی تھی وہ پہلے والے سے زیادہ خوبصورت تھی، جسے پا کر وہ دونوں بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے اس کا نام عنایہ رکھا۔ وہ ایک بھوری آنکھوں اور بھورے بالوں والی ایک بے حد حسین بچی تھی۔ عنایہ جب 1 سال کی ہوئی تو ریما کو بڑی بے چینی سے ایک نئے پھول کے کھلنے کا انتظار رہنے لگا۔ وہ ہر روز جب بھی سیف گھر آتا اس کے ہاتھ دیکھتی اور انہیں خالی پا کر اداس ہو جاتی۔ انتظار تو سیف کو بھی بہت تھا۔ وہ ہر دوسرے دن اسی خاص پیڑ کو دیکھتا اور اس خاص پھول کو نہ پا کر اداس ہو کر اپنے کام میں مصروف ہو جاتا۔ گاؤں میں کچھ سیاسی جھگڑے چل رہے تھے، جس کی وجہ سے شہر جانے والا راستہ بند تھا اور سیف نے شہر جا کر بازار میں کچھ سبزی فروشوں سے اپنی رقم لینی تھی۔ آج کا دن وہ پہلے سے طے کر چکا تھا، سو زبان کا پاس رکھتے ہوئے آج جانا ضروری تھا۔ راستے بند ہونے کی وجہ سے وہ پریشان تھا، مگر اس نے متبادل راستہ تلاش کر کے وہاں سے جانے کا فیصلہ کیا۔ اس راستے پر آبادی نہ ہونے کے برابر تھی۔ ایک ہی قد کا گھر بڑی دور دور بنے ہوئے تھے۔ اس میدانی علاقے کو عبور کر کے قبرستان شروع ہوتا۔ سیف قبرستان کے راستے سے جلد از جلد گزرنا چاہتا تھا، سو اس نے اسی جگہ بیٹھ کر کھانا کھانے کا فیصلہ کیا جو ریما نے اسے پیک کر کے ساتھ دیا تھا۔ اس نے پاس موجود پانی کی بوتل سے ہاتھ دھو کر اپنے گرد لپٹی گہرے رنگ کی چادر سے ہاتھ صاف کیے اور وہیں ایک جگہ بیٹھ کر کھانا کھانے لگا۔ کھانا کھا کر عادت کے مطابق دونوں ہاتھ ہوا میں بلند کر کے خدا کا شکر ادا کیا اور جو بچی ہوئی روٹی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے پرندوں کو ڈال کر خود آگے بڑھ گیا۔ یہ راستہ خاصا طویل تھا، جس کی وجہ سے وہ تیز تیز چل رہا تھا۔
اس کے کندھوں کو چھوتے لمبے بال ہوا میں لہرا رہے تھے۔ اس کی عادت تھی کہ وہ جب بھی قبرستان سے گزرتا وہاں دعائے مغفرت کے لیے ضرور رکتا۔ اب بھی وہ قبرستان میں داخل ہوتی بلند آواز میں سلام کرنے کے بعد دونوں ہاتھ دعائیہ انداز میں اٹھا کر دعا کرنے لگا۔ ابھی وہ دعا کر ہی رہا تھا کہ اسے کسی بچے کے سسکنے کی آواز سنائی دی۔ وہ دونوں ہاتھ چہرے پر پھیر کر مڑا اور کچھ فاصلے پر ایک چبوترے نما جگہ پر ایک 3 سالہ بچی کو روتے پا کر حیران رہ گیا۔ وہ اس بچی کے قریب گیا، اس کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا۔ وہ اس سے اس کے گھر اور والدین کے بارے میں پوچھ رہا تھا، مگر وہ اتنی چھوٹی تھی کہ کچھ بتا نہیں سکتی تھی۔ سیف نے پیار سے اس بچی سے بات کی تو وہ خاصی بہل گئی تھی۔ وہاں سیف کی موجودگی نے اسے خاصا حوصلہ دیا تھا۔ میرے ساتھ میرے گھر چلو گی؟ وہاں تمہاری 2 دوست موجود ہیں جو تمہارے ساتھ کھیلیں گی اور تمہیں اپنے کھلونے بھی دیں گی۔ کافی دیر تک سیف کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو وہ پوچھ بیٹھا۔ اس کی بات سن کر بچی کی آنکھوں میں چمک اور ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس نے سر ہلا کر فوراً رضامندی ظاہر کر دی۔ سیف یہاں اسے اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا۔ مجبوراً اسے شہر جانے کا ارادہ ترک کر کے اس سفید فراق اور گلابی گالوں والی بچی کو گود میں اٹھا کر واپسی کے راستے پر چل پڑا۔ وہ مڑ مڑ کر بار بار دیکھتا کہ شاید کوئی اس بچی کو ڈھونڈتا دکھائی دے جائے اور وہ بچی کو اس کے ورثہ کے حوالے کر دے، مگر ہر بار ہی اسے مایوسی کا سامنا ہوا۔ سوائے اڑتے ہوئے آوارہ گرد پرندوں کے اسے کچھ دکھائی نہ دیا۔ خیر، گھر میں داخل ہوا تو ریما اس بچی کو دیکھ کر بہت حیران ہوئی۔ سیف نے اسے ساری بات بتائی تو اسے تسلی ہوئی۔ اس نے اس بچی کو پیار سے گلے لگایا اور اس کا منہ ہاتھ دھلانے کے بعد اسے روحا کے کپڑے پہنا کر بہت پیار سے بال بنائے۔ روحا اور انایا ایک پیاری سی گڑیا دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ ریما اسے گڑیا کہہ کر پکار رہی تھی۔ گڑیا نے ریما کے ہاتھ سے کھانا کھایا اور رات کو سیف کی بازو پر سر رکھ کر سوئی تھی۔ اگلے روز سیف شہر جانے کو بھول کر گھر سے نکلتے ہی قبرستان کے راستے پر قدم رکھ چکا تھا کہ ہو سکتا ہے وہاں قریب کوئی گڑیا کو ڈھونڈتا نظر آ جائے اور وہ اس طرح گڑیا کو اس کے ماں باپ تک پہنچا دے، مگر ایسا بالکل نہیں ہوا۔ وہاں سے 1-2 لوگ نظر آئے جو وہاں کسی اور مقصد کے لیے موجود تھے۔ بچی کی تلاش کے لیے کوئی پریشان انسان دکھائی نہیں دیا۔ وہ تھک ہار کر واپس اپنے کھیت پر لوٹ گیا اور روزمرہ کا کام سر انجام دینے لگا، مگر اس کا پورا دن ذہن گڑیا والے مسئلے میں ہی الجھا رہا۔ شام کو وہ گھر گیا تو ریما اس کی پریشانی پر فکرات کا جال دیکھ کر وہ سمجھ گئی کہ گڑیا کی وجہ سے پریشان ہے۔ گڑیا یہاں پر خوش ہے، آپ پریشان نہ ہوں، اس کے ماں باپ بھی مل جائیں گے، قسمت میں لکھا ہوا تو اپنے ماں باپ سے مل کر رہے گی۔ ریما نے شوہر کو تسلی دی، ورنہ سیف کے ذہن میں خدشہ بول رہا تھا، ورنہ وہ یہاں بہت خوش ہے، ہمارے لیے یہ بھی روحا اور انایا کی طرح ہی ہوگی۔ ریما نے کچھ دور کھیلتی بچیوں پر ایک پیار بھری نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ سیف کے دل پر پڑا بوجھ بھی ہلکا ہو گیا تھا۔ اس نے ریما کا ہاتھ تھام لیا اور بہت پیار سے بولا، نیک بخت، مجھے تجھ سے یہی امید تھی، مگر میں اپنے طور پر بچی کے ماں باپ کے ملنے کی پوری کوشش کروں گا۔ وہ اس طرح باتیں کرتے رہے اور کچھ دیر بعد ریما نے دسترخوان لگایا تو سب کھانا کھانے لگے۔ اگلے دن سیف صبح جلدی سے اٹھ کر ناشتہ کرنے کے بعد گھر سے نکل گیا اور کھیت پر جانے کی بجائے قبرستان کے قریب ایک بستی کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ وہاں بستی میں ذاتی طور پر کسی کو نہیں جانتا تھا، تبھی کچھ گھبرایا ہوا تھا۔ اس نے ایک دروازہ بجایا تو کچھ ہی دیر میں دروازہ ایک بارش بزرگ نے کھولا۔ بابا، کیا یہاں کسی کی بچی گم ہوئی ہے؟ اس نے سلام کرنے کے بعد سوال کیا تو بابا نے سر ہلا کر فوراً انکار کیا اور نہ سمجھی کے انداز میں سیف کی طرف دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی سوال کرتے، سیف آگے بڑھ گیا اور اس طرح کچھ مزید گھروں میں معلوم کرنے کے بعد وہ مایوس ہو کر کھیت کی طرف چل پڑا اور اپنے دماغ کو کام میں مصروف کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ سیف نے گڑیا کے ماں باپ کو تلاش کرنا چھوڑ دیا اور گڑیا بھی ان سب سے مانوس ہو گئی تھی۔ وہ دونوں اس کے ساتھ بالکل ویسی محبت کرتے جیسی انایا اور روحا سے کرتے تھے۔ دونوں بچیاں بھی اسے اپنی بہن سمجھتی تھی۔ ایک روز صبح کے وقت سیف معمول کی طرح جلدی اٹھ کر ناشتہ کر رہا تھا۔ ریما اس کے قریب بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔
اس کی باتیں زیادہ تر بچیوں کی شرارتوں کے گرد ہی گھومتی تھی۔ سیف کام پر جانے پر جلدی کی وجہ سے کبھی ہنس کر اور کبھی سر ہلا کر اس کی باتوں پر رد عمل کا اظہار کر رہا تھا۔ اسی وقت عنایا جاگ گئی۔ آج میری شہزادی جلدی جاگ گئی؟ ریما نے اسے پیار کرتے ہوئے کہا تو وہ ماں کی گود میں چڑھ گئی۔ وہ تینوں بچیاں صبح کو سیف کے کام پر جانے کے بعد بیدار ہوئی تھی، مگر آج عنایا جلدی جاگ گئی تھی۔ اس کے فوراً بعد روحا اور گڑیا بھی اٹھ گئی اور صبح کے وقت اپنے بابا کو گھر میں دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ دن اسی طرح پیار اور محبت سے گزر رہے تھے کہ ایک روز گڑیا کو بہت تیز بخار ہو گیا۔ سیف اور ریما اس کے لیے بہت پریشان ہوئے۔ پہلے پہر ریما نے پانی کے اندر مخصوص جڑی بوٹیاں پکائی جو وہ ہمیشہ بچیوں کو بخار میں پلاتی تھی، وہی گڑیا کو بھی پلائی، مگر اس کا بخار اترنے کی بجائے مزید تیز ہو گیا۔ سیف کا پریشانی سے برا حال تھا۔ وہ گاؤں کے سب حکیموں کے پاس اسے لے کر گیا مگر کوئی آرام نہیں آیا۔ اسی دوران اس کے کچھ دوستوں نے اسے شہر میں ڈاکٹر کے پاس جانے کا مشورہ دیا تو وہ وقت ضائع کیے بغیر گڑیا کو لے کر شہر چلا گیا۔ وہاں 2 دن تک اپنے ایک دوست کے گھر رکا، مگر کسی دوائی سے گڑیا کو آرام نہیں آیا۔ وہ وہیں پریشان سا فٹ پاتھ پر بیٹھا گڑیا کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ ایک درمیانی عمر کے آدمی نے آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ پریشان ہو سیف نے سر اٹھا کر اس اجنبی کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے ہمدردی پا کر اس نے گڑیا کے بخار اور اپنی بھاگ دوڑ کی ساری کہانی اسے سنائی۔ اتفاق سے اس شخص کا تعلق بھی سیف کے قریبی گاؤں سے تھا۔ اس نے ایک دم سے دم کروانے والی عورت خیر بی بی کا ایڈریس اسے بتا دیا اور خیر بی بی کے دم کی تاثیر سے بھی آگاہ کر دیا۔ سیف اس کا شکریہ ادا کر کے وقت ضائع کیے بغیر گڑیا کو گود میں اٹھائے شام کی ٹرین سے گاؤں جانے کے لیے روانہ ہو گیا۔ یہ سفر اسے بڑا طویل محسوس ہو رہا تھا، بڑی مشکل سے ختم ہوا اور وہ خیر بی بی کے علاقے میں داخل ہو کر لوگوں سے پوچھتا ہوا ان کے آستانے پر حاضر ہو گیا۔ وہاں کئی پریشان حال لوگوں کا رش لگا ہوا تھا اور لوگ قطار بنا بنا کر خیر بی بی کے کمرے میں دم کروانے کے لیے جا رہے تھے۔ ایک ملازم نے آ کر ٹھنڈے پانی کا گلاس سیف کے آگے بڑھایا تو اسے ایسے لگا گویا وہ صدیوں کا پیاسا ہے، اور ایک ہی سانس میں اس پانی کو گٹا کر چڑھا لیا۔ پانی پی کر اسے اپنے اندر توانائی دوڑتی محسوس ہوئی۔ اس نے ایک نظر گڑیا پر ڈالی جس کی آنکھیں اب بھی بند تھی اور اس کا چہرہ پیلا زرد مرجھایا ہوا لگ رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ سے اس کے بال سمیٹے اور پیار سے اس کے گال پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ خیر کافی دیر انتظار کے بعد اس کی باری آ ہی گئی۔ خیر بی بی ایک ادھیڑ عمر عورت تھی، سنجیدہ چہرے سے دور اندیشی اور تجربہ چھانکتا تھا۔ انسانی معاملہ نہیں لگتا۔ جیسے ہی سیف خیر بی بی کے سامنے بیٹھا تو انہوں نے کہا تو سیف حیران رہ گیا۔ بابا مجھے یہاں کیوں لے کر آئے؟ بابا گڑیا یکدم اٹھ کر زور زور سے رونے لگی اور سیف کی گرفت سے نکل کر بھاگنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کے جسم کو جھٹکے لگ رہے تھے۔ سیف اسے دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اسے قابو کرنا سیف کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ تیرے بس کا روگ نہیں ہے یہ، خیر بی بی نے ہنس کر کہا اور کچھ پڑھ کر پھونکا تو وہ ایک دم بے جان سی ہو کر سیف کے بازو میں جھول گئی۔ یہ لڑکی تمہیں کہاں سے ملی تھی؟ خیر بی بی کے پوچھنے پر سیف گھبرا سا گیا۔ میری بیٹی ہے یہ، اس کے لہجے نے جھوٹ کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ میرے سامنے تمہارا یہ جھوٹ نہیں چل سکتا۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ مجھے سچ بتاؤ کہ تمہارے لیے کچھ بہتر سوچا جا سکے۔ خیر بی بی کے کہنے پر سیف نے ساری بات سچ بتا دی۔ خیر بی بی غور سے اس کی بات سن رہی تھی۔ پوری بات سننے کے بعد وہ بولی، میری بات غور سے سنو، یہ ایک جن زادی ہے اور جنات کے قبیلے سے بھٹکی ہوئی بچی ہے۔ بہتر ہے کہ تم اس کو وہیں چھوڑاؤ جہاں سے اسے لے کر آئے تھے۔ تمہارے پاس اس کی موجودگی سراسر خطرہ ہے۔ میں ایسا نہیں کر سکتا خیر بی بی، سیف تڑپ کر بولا۔ پچھتاؤ گے، ایک نہ ایک دن تمہیں اس کو جدا کرنا پڑے گا، یہ بات یاد رکھنا۔ مزید وقت گزرا تو اس کو جدا کرنا تمہارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ یہ اب بڑی ہو رہی ہے، اس کی حقیقت چھپانا تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ خیر بی بی نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی اور اسے جانے کا کہہ دیا۔ وہ گڑیا کو کندھے پر ڈالے جیسے ہی خیر بی بی کے آستانے سے باہر نکلا، گڑیا نے آنکھیں کھول لی اور گھور کر اس کی طرف دیکھا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی بابا۔ اس سے نظر ملانا سیف کے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھیں بہت زیادہ چمک رہی تھی۔
मुझे माँ के पास जाना है बाबा। वो अपने पुराने अंदाज में ही जिद कर रही थी, मगर सैफ को खौफ महसूस हो रहा था। बाबा, क्या मुझे छोड़ आओगे? इस बार उसकी आंखें आंसू से भर गए थे। कोई अपनी मर्जी से इंसान या जिन्नात कहाँ होता है बाबा, ये तो बनाने वाले के काम है। गुड़िया की आंख से आंसू गिरा और सैफ का दिल जैसे मुट्ठी में आ गया। तुम हमारी गुड़िया हो और हमेशा हमारे पास रहोगी, मगर तुम्हारी हकीकत क्या है, ये राज हम दोनों के दरमियान रहेगा। वादा करो मुझसे। सैफ ने अपना हाथ उसके सामने फैलाया तो उसने वादा करने के अंदाज में हाथ थामकर चूमा और आंखों से लगा लिया। मेरा वादा है बाबा जान, मैं कभी माँ और बहनों पर यह बात जाहिर नहीं करूंगी कि मेरी हकीकत क्या है। गुड़िया ने सच्चे दिल से वादा किया तो सैफ को तसल्ली हुई और वो उसका हाथ थामे चलने लगा, मगर उसका दिल परेशान था क्योंकि उसने कभी रीमा से कोई बात नहीं छुपाई थी। कभी उन दोनों के दरमियान कोई बात राज के तौर पर नहीं रही थी। ये पहला मौका था कि वो अपने राज से कोई राज छुपा कर दिल में रख रहा था। वो अच्छी तरह जानता था कि रीमा इतने बड़े दिल की मालिक नहीं है कि गुड़िया की हकीकत जानने के बाद भी उसे रूहा और अनाया के पास रखती। वो इन्हीं सोचों में पूरा रास्ता तय कर चुका था। रीमा बेचैनी से दरवाजे पर दोनों का इंतजार कर रही थी। गुड़िया को चलता देखकर उसके दिल को तसल्ली हुई थी और आगे बढ़कर गले से उसे लगा लिया। गुड़िया माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। गुड़िया क्यों रो रही है? शहर के डॉक्टर ने क्या बहुत सारी सुइयां लगाई थी? रीमा अपनी समझ के मुताबिक सवाल कर रही थी। नहीं, तुम्हें बहुत याद कर रही थी गुड़िया, इसलिए रो रही है। सैफ ने उसे तसल्ली दी। मेरी धी रानी मेरे पास आ तो गई है, रो मत। मैं रोज ही तेरी पसंद का खाना बनाकर तुम लोगों का इंतजार करती रही हूँ। आज मेरा दिल कह रहा था कि तुम लोग जरूर आओगे। चलो ताज़ा दम हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। रोहा और अनाया भी गुड़िया के घर लौटने से बहुत खुश थे। वो खाना खाने के बाद गुड़िया के साथ खेलने लगी और सैफ सोने के लिए लेट गया। काफ़ी दिन से उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी, अब वो आराम करना चाहता था। दिन इसी तरह से गुजरते रहे। तीनों लड़कियां जवानी में कदम रख चुकी थी और एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करती थी। एक रोज़ उन्हें मालूम हुआ कि मैदानी इलाके में मेला लगने वाला है। वो वहाँ जाने के लिए पुरजोश थी और तैयार थी, मगर रीमा उन्हें वहाँ नहीं भेजना चाहती थी क्योंकि मैदानी इलाका वहाँ से खासा दूर था। रीमा दोपहर को आराम के लिए लेटी तो वो तीनों सर जोड़कर मेले में शिरकत के मंसूबे बनाने लगी। मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह से माँ हमें वहाँ जाने देगी। वो खुद साथ चलेंगी नहीं और अकेला हमें जाने देंगी नहीं। रोहा बात की तह तक पहुंची। मेरे पास एक आइडिया है। गुड़िया के कहने पर वो दोनों बड़ी गौर से उम्मीद भरी नजरों से उसे देखने लगी। मुझे लगता है पिछली गली में जो तीसरा घर है फरजाना बाजी का है, वो लोग मेले में जाएंगे। हम अम्मा से इजाज़त लेकर उनके साथ चले जाएंगे। माँ इनकार नहीं करेगी। रोहा और अनाया ने उसकी बात सुनकर अपना सर पीट लिया। तुम कैसे इतने यकीन से कह सकती हो कि वो लोग भी मेले में जाएंगे? पागल न हो तो। रोहा मुंह बनाकर बोली। मुझे एक बार उनकी बेटी बता रही थी कि उन्हें मेला देखने का बड़ा शौक है, इसलिए मुझे लगा कि हो सकता है उन्होंने भी जाना हो। गुड़िया एकदम संभल कर बोली तो उन दोनों को तसल्ली हुई। उन्होंने रीमा से इजाज़त लेना चाहिए तो रीमा फरजाना के घर मालूम करने गई तो पता चला कि वो लोग वाकई मेले पर जाने की तैयारियां कर रहे थे। रीमा हैरान तो हुई, मगर उसने ज़्यादा गौर नहीं किया और फिर कामों में पड़ी तो ये बात उसके जहन से निकल गई। वो उन्हें भेजने की तैयारी करने लगी और जाते समय एक छोटा सा थैला अनाया को पकड़ा कर कहा, इसके अंदर कंकरियां हैं। चलते हुए रास्ते में एक पे एक फेंकती रहना। अगर वापसी पर तुम तीनों को अकेले घर आना पड़ा तो इन कंकरियों की मदद से तुम्हें ये रास्ता समझ आ जाएगा। वो थैला हाथ में लेकर खुशी खुशी माँ से गले मिलने लगी। आपस में प्यार से रहना, एक दूसरे का ख्याल रखना, किसी बात पर लड़ना नहीं है। दिन ढलने से पहले घर वापस आने की कोशिश करना। माँ ने नसीहतों और दुआओं के साए में उन्हें रुखसत कर दिया। वो तीनों खुशी खुशी माँ की बात सुनकर और उन बातों पर अमल करने का वादा करके घर से निकल गई। फरजाना और उसकी बेटियों के साथ वो तीनों खुशी खुशी चल रही थी। रोहा के हाथ में खाने का डब्बा था जो माँ ने उन्हें पैक करके दिया था। गुड़िया के पास एक गर्म मोटी चादर थी और सबसे पीछे चलती अनाया माँ की हिदायत के मुताबिक एक एक कंकर रास्ते में गिराते हुए चल रही थी। वो लोग मेले में पहुंचे तो मेले में बहुत ज्यादा रश था। ऐसा लगता कि इटकिट के गांव से सारे लोग उसी मेले में आकर जमा हो गए।
वो तीनों एक दूसरे का हाथ थामते आगे बढ़ रही थी। फरजाना अपनी बच्चियों के साथ जहाँ जगह मिली उसी तरफ चली गई तो अनाया बोली, क्या ही अच्छा होता अगर माँ या बाबा हमारे साथ चले आते। माँ की तबीयत ठीक होती तो वो ज़रूर आती। ये रोहा थी जो शोर होने की वजह से तेज़ आवाज़ में बोली। बाबा का शहर जाना बड़ा ज़रूरी था, वरना वो भी हमारे साथ आते। सच में अकेले मज़ा नहीं आ रहा। गुड़िया ने अपने ख्याल का इजहार किया तो दोनों ने भी सर हिलाकर उसकी तायद की। वो तीनों पहली बार घर से अकेली निकली थी और माँ बाप के बगैर अच्छा महसूस नहीं कर रही थी। काफ़ी देर तक मेले में मुख्तलिफ करतब और मौत का कुआं देखने के बाद दिन ढले वो खासी थक चुकी थी। उस रंगारंग मेले में मुख्तलिफ चीज़ें फ़रोख्त करने वाले दुकानदार भी ठेलों के साथ मौजूद रौनक बढ़ा रहे थे। कांच की खूबसूरत और नाजुक चूड़ियों ने उसकी तवज्जो अपनी जानिब खींच ली तो वो लोग चूड़ियाँ देखने में मगन हो गई। चूड़ियाँ खरीद कर एक तरफ से ताज़ा मोतिये के बने गजरों की महक ने इनाया को अपनी जानिब खींचा तो वो तीनों उस तरफ चल दी। अब हमें घर चलना चाहिए, अनाया ने आसमान की तरफ देखकर कहा। शाम की सरमई चादर हर तरफ फैल चुकी थी। दिन ढल रहा था। फरजाना बाजी को उस भरे मेले में ढूंढना नामुमकिन है। हम रास्ते में फैली कंकरियों की मदद से घर पहुंच सकती हैं, रोहा ने कहा तो गुड़िया बेख्तियार बोल पड़ी, और अगर वो कंकर परिंदे खा गए हुए तो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, रूहा और अनाया ने घबराकर एक साथ कहा। मेले से वो तीनों बाहर निकली तो वाकई रास्ते में किसी कंकर का नामो निशान भी नहीं था। तुमने ठीक कहा है गुड़िया, कंकर शायद परिंदे खा चुके हैं, अनाया ने दुखी अंदाज में कहा। अब हम घर कैसे जाएंगे? रोहा रोने को थी। कुछ ऐसा ही हाल अनाया का भी था, जबकि गुड़िया के चेहरे पर कोई परेशानी के आसार नहीं थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि हम किस रास्ते से आए थे। गुड़िया के कहने पर उन दोनों के चेहरे पर सुकून फैल गया। हमें मजीद वक्त ज़ाया किए बगैर चलना होगा ताकि अंधेरा फैलने से पहले घर पहुंच जाएं। वो तीनों तेज तेज चलने लगी। शाम होते ही उन इलाकों में हर तरफ सन्नाटा फैल जाता है, क्योंकि अक्सर घरों बल्कि पूरे इलाकों में बिजली की सहूलत आज भी मौजूद नहीं थी। अंदरूनी सिंध के ये इलाके दिन टहलते ही अपनी रौनकें खो देते। उसकी एक बड़ी वजह यह भी थी कि लोग सुबह सवेरे उठने और शाम को काम का जल्दी निपटाकर सोने के आदी हैं। खैर, उन्हें देर हो चुकी थी, हर तरफ अंधेरा फैल गया था। माँ और बाबा हमारे लिए फिक्रमंद होंगे, अनाया ने रोने वाले अंदाज में कहा तो गुड़िया बड़े इत्मीनान से बोली, ऐसा भी तो हो सकता है कि बाबा को भी शहर से निकलने में देर हो गई हो और वो वहीं रात गुजारने के लिए रुक गए हों। मुझे लगता है कि तुम नजूमी हो, और मुझे भी ऐसे ही लगता है कि वाकई बाबा आज शहर में ही रुके होंगे, क्योंकि तुम्हारे अंदाजे हर बार दुरुस्त निकलते हैं। रोहा के कहने पर गुड़िया हंसकर बात को टाल गई। हर तरफ गुप अंधेरा फैल चुका था। अनाया और रूहा गुड़िया के हाथ थामे चल रही थी कि रूहा को अंधेरे में दूर कहीं रोशनी की एक लकीर नजर आई। हमें वहां चलकर रात गुजारने के लिए पनाह लेनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि हमें मदद जरूर मिलेगी। पागल मत बनो, माँ और बाबा को पता चला तो छोड़ेंगे नहीं, और दूसरी बात कि माँ घर में अकेली कैसे सो पाएगी हमारे बगैर। गुड़िया ने गुस्से से कहा तो वो दोनों चुपचाप चलने लगी। तुम दोनों बस मेरे साथ साथ चलो। वो घुप अंधेरे में पूरे एतमाद और बिना किसी खौफ के चल रही थी। उसके दोनों हाथों में रोहा और अनाया के हाथ सख्त गिरफ्त में थे। दूसरी तरफ रीमा बेटियों के इंतजार में सख्त फिक्रमंद थी। क्या ज़रूरत थी मुझे जवान जहान बच्चियों को यूं मुंह उठाकर मेले में भेजने की? क्या जवाब दूंगे इनके बाप को कि जिन बच्चियों को अपनी जिम्मेदारी पर मेले में भेजा था वो रात गए तक वापस ही नहीं आई? रीमा पूरे घर में टहलते हुए खुद कलामी कर रही थी। उसका दिल डूबा जा रहा था। फरजाना के घर वो शाम को ही जाकर मालूम कराई थी। वो लोग घर पहुंच चुके थे। नहीं आई थी तो उसकी बेटियां, जिन्होंने उसे जैसे सूली पर लटका दिया था। इस वक्त वो आएंगी भी तो कैसे आएंगी? बाहर अंधेरा ही इतना है कि इंसान खड़ा हो तो अपना हाथ तक नहीं देख सकता। रीमा सोचों में गुम हद से ज्यादा परेशान थी। उसने मिट्टी का दिया उठाकर अपने घर के सामने रख दिया ताकि वो रात को आए तो उसकी रोशनी में अपने घर के दरवाजे को देख सके। दरवाज़ा बंद करके वो आंखें मूंद कर लेट गई। खाली घर उसे काट खाने को दौड़ रहा था। रात को जब सोने में देर हो जाती तो वो लड़कियों को डांट डपट कर सोने के लिए लिटा देती।
मगर उनकी दबी दबी हंसी और बातों की आवाज़ें देर तक आती रहती। नींद रीमा की आंखों से कोसों दूर थे। काश सैफ ही आज घर में होता तो कम से कम मैं ये परेशानी अकेली न झेल रही होती, उसने दुख से सोचा। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। वो लम्हा ज़ाया किए बगैर उठी और दरवाज़ा खोला। तीनों लड़कियों को अपने सामने देखकर खुशी के मारे रो पड़ी। ऐसे क्यों रो रही हो माँ, कुछ हुआ है क्या? रीमा उन्हें बारी बारी प्यार करते हुए रो रही थी। पागल, माँ हमारे लिए परेशान थी इसीलिए रो रही हैं, रोहा ने अनाया से कहा तो वो शर्मिंदगी से सर झुकाकर खड़ी हो गई। वो तीनों माँ से माफ़ी मांगकर उनके पास बैठ गई। रीमा ने भी खुद को संभाला। तुम लोगों को रास्ता कैसे दिखाई दिया? रीमा ने पूछा तो अनाया बोल पड़ी, गुड़िया को अंधेरे में भी रास्ता मालूम था माँ। यही नहीं, गुड़िया को तो ये भी मालूम था कि बाबा आज शहर से नहीं लौटे, रोहा ने कहा तो रीमा सोच में डूब गई। ये सब इत्तेफाक है माँ, इससे बढ़कर कुछ नहीं। गुड़िया ने मजबूत लहजे में बोलने की कोशिश की थी, मगर रीमा उस मजबूत लहजे की बनावट से अच्छी तरह मालूम थी। झूठ तो मालूम हो गया था, बस सच जानना जरूरी था। रोहा और अनाया भी दिन भर की थकन के बाद बहुत जल्द लेटते ही सो गई, जबकि नींद रीमा और गुड़िया की आंखों से मीलों की दूरी पर थी। गुड़िया तो जाग रही है ना? रीमा को मालूम होता था कि कौन जाग रहा है और कौन सो रहा है। अपने घरवालों के मामले में उसकी छठी हिस्स बहुत तेज थी। वो उनकी बंद आंखों के पीछे का अहवाल एक नज़र देखकर बता देती थी कि कौन सो रहा है और कौन जाग रहा है, या फिर कौन कितनी गहरी नींद सो रहा है। गुड़िया इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थी। तभी माँ के पुकारने पर चुप न रही। जाग रही हो माँ? गुड़िया के दिल में अनजाना सा खौफ फैला था, उसकी आवाज़ से भी जाहिर था, और ये खौफ रीमा ने वाज़े महसूस किया था। तो कौन है और तेरा ताल्लुक किस जगह से था? मैं नहीं जानती गुड़िया, रीमा सोच सोच कर बोल रही थी। अपनी किसी बात से गुड़िया की दिलाजारी नहीं करना चाहती थी। मजीद बोली, मैंने तुझे पहले दिन से बेटी कहा ही नहीं, समझा भी। मुझे लगता है तूने भी मुझे अपनी माँ समझ लिया, मगर शायद मैं गलत थी। गुड़िया की सिसकी अंधेरी बड़ी खामोश रात में बड़ी वाज़ेह थी। रीमा ने बढ़कर उसे गले लगाया। मुझ पर शक है माँ, मेरी मोहब्बत पर? वो आंसू के दरमियान बोली तो रीमा तड़प कर इनकार में गर्दन हिलाने लगी। मुझे कोई शक नहीं है, बस तेरे अंदर जो अजीब ताकत आ जाती है, मैं उससे परेशान हूँ। रीमा दिल की बात जुबान पर ले आई। कैसी ताकत माँ? गुड़िया को समझ नहीं आ रही थी कि किस तरह माँ को मुतमईन करे। जो चीज़ तेरे सामने नहीं होती तुझे उसके बारे में इल्म कैसे हो जाता है? रीमा के लहजे में हैरत थी। माँ, ये कहना चाहती हूँ कि मैं कोई भूत हूँ या मेरे साथ भूत प्रेत है? गुड़िया ने हंसकर बात टालना चाही। नहीं, मगर कुछ तो है जो मुझे अंदर ही अंदर खटक रहा है। रीमा अब भी मुतमईन नहीं थी। वो चीज़ वहम है माँ, और कोई नहीं, गुड़िया ने माँ की तरफ देख कर कहा, और उस नज़र में न जाने क्या तासीर थी। एकदम रीमा को दिमाग घूमता महसूस हुआ। मुझे तो नींद आ गई गुड़िया, ये आखिरी जुमला था जिसे बोलकर वो गहरी नींद में डूब गई। अगली सुबह वो बेदार हुई तो रीमा के जहन से रात गुड़िया से होने वाली बातें मिट चुकी थी। वो मुकम्मल तौर पर सब भूली थी। वो मामूल के मुताबिक बातें कर रही थी। गुड़िया ज़्यादातर खामोश रहती। अनाया और रोहा ही मेले की बातें करते। कुछ देर बाद सैफ आ गया। वो शहर से उनके लिए खाने पीने और तहफ़ के लिए बहुत सी चीज़ें ले आया था। वो दोनों खुश हो गए, जबकि गुड़िया खामोश बैठी थी। मेरी गुड़िया मेले में जाकर थक गई है। सैफ ने गुड़िया को खामोश देखा तो मुस्कुरा कर कहा। गुड़िया सर हिलाकर ताबेदारी से बोली, बाबा बिल्कुल, और इन दोनों ने डर डर कर मुझे भी डराया। उसकी बात पर सब हंस पड़े। एक खूबसूरत बाग था जिसके अंदर गुड़िया बहनों के साथ खेलती फिर रही थी। वो सब खुश थी और रंग बिरंगी तितलियां बाग में उड़ती फिर रही थी। वो तीनों पकड़ने के लिए उनके पीछे भागी कि उसी वक्त पूरे बाग में धुआं फैल गया। उसकी तेज नागवार बू रोहा और अनाया का सांस बंद कर रहे थे, जबकि गुड़िया खौफजदा सी खड़ी होकर इधर उधर देख रही थी कि एकदम दो भयानक सूरतें नमूदार हुई। उनके चेहरे भयानक थे और उलझे हुए बाल पूरे जिस्म पर लिपटे थे। बड़ी आंखें और उनमें भरा गुस्सा चेहरे को उनके मजीद खौफनाक बना रहा था। गुड़िया सहम गई। उनमें से एक बला गुर्राने के अंदाज में बोली, हम तुझे लेने आए, चल हमारे साथ, हमारे कबीले से है तू, इंसानी कबीले में तेरा कोई काम नहीं। वो बाजू फैलाए गुड़िया से मुखातिब थे, जबकि वो थर थर कांप रही थी। मैं वापस नहीं जाऊंगी, वो हिम्मत करके बोल पड़ी। तुझे जाना होगा। ये दूसरी बला थी जो आहिस्ता आहिस्ता गुड़िया की जानिब बढ़ रही थी। उसने गुर्राते हुए कहकर अपना भारी और लंबा हाथ गुड़िया की जानिब बढ़ाया।
तो एक कदम पीछे हटाने की हिम्मत गोया गुड़िया से खत्म हो गई थी। वो वहां से हट जाना चाहती थी मगर हट नहीं पा रही थी। उसने गर्दन मोड़कर रूहा और अनाया को देखना चाहा मगर वो उसे दिखाई नहीं दी। मैं हरगिज नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ, वह अलग के बल चिल्लाई, साथ ही उसकी आंख खुल गई। उसका जिस्म पसीने में शराबूर डर के मारे कांप रहा था। रीमा, रूहा और अनाया दौड़कर उसके पास आई, उसे पानी पिलाया। ओहो, लगता है डरावना ख्वाब देख लिया है। रीमा ने उसे गले से लगाया। अनाया और रूहा भी उसके साथ उसके हाथ सहला रही थी। रात को सैफ आया। रीमा ने उसे खाना दिया और मामूल के मुताबिक उसके पास बैठकर बातें करने लगी। उसने उसे गुड़िया के डरावने ख्वाब और डर कर उठने की बात बताई तो सैफ से लुक में अलग में उतारना मुश्किल हो गया। रीमा मजीद बोली, उसे खैर बीबी से दम करवा लाएं, मुझे लगता है वो आजकल ठीक नहीं है। इसकी ज़रूरत नहीं, खबरदार तुमने इसे वहाँ ले जाने की कोशिश की तो, सैफ ने सख्त लहजे में कहा। तो रीमा हैरान होकर देखने लगी। ऐसी कौन सी बुरी बात कह दी मैंने जो आप इतना गुस्सा दिखा रहे हैं? याद नहीं है एक बार इसे बड़ा तेज बुखार चढ़ा था, किसी जगह से आराम नहीं आया था, खैर बीबी के दम करने से ही ठीक हुई थी। रीमा ने बात की वजाहत की मगर जवाब में सैफ खामोश रहा। दरवाजे के पीछे खड़ी गुड़िया बाप की खामोशी के पीछे छुपे जवाब से वाकिफ थे। काश मैं इनकी जिंदगी में ना आती तो आज ये मेहरबान चेहरे परेशान ना होते। उसके दिल से चुपके से आवाज आई। रूहा का रिश्ता बचपन से तय था। सैफ का बड़ा भाई जो करीबी एक गांव में रहता था, उससे रूहा की पैदाइश पर ही सैफ ने भाई को रिश्ते के लिए जुबान दे दी थी। अब वो अपनी अमानत को निकाह के 2 बोल पढ़ाकर जल्द ही साथ ले जाना चाहते थे। रीमा बेटी को रुखसत करने की तैयारी में मसरूफ हो गई। अनाया और गुड़िया को भी साथ काम पर लगाए रखती। रूहा के ससुराल से लोगों का आना जाना लगा रहता। पुतीले भरकर मज़ेदार खाना बनता और रूहा के ससुराल वालों को इन्हीं गांव से आने वाले हमसायों की भी मेहमानदारी किए बगैर वापस न भेजता। उस रोज़ दोपहर के वक्त सैफ अपने और मुलाजमी के लिए खेत पर खाना ले जाने के लिए घर आया तो रीमा बड़े से पुतीले के अंदर चावल निकालकर पैक करते हुए बोली, रूहा के अब्बा, मैं तो कहती हूँ एक ही बार तीनों को रुखसत कर दो ताकि शादी का खड़ाक बार बार न हो। सच में मैं तो बड़ा थक गई हूँ। सैफ उसकी बात पर हंस पड़ा। पगली कहीं की, बेटी को रुखसत करने से पहले ही थक गई? अभी तो बड़े काम हैं, काम तो तुमने देखे ही कब है ना। तो मैंने पहले 10-10 बेटियां ब्याही हैं क्या जो मुझे तजुर्बा होगा? आप बिना हद करते हैं। उनकी नोक झोंक जारी थी कि मोहल्ले का बच्चा अंदर आकर बोला, चाचा बाहर कोई आपको बुलाने आया है। सैफ उठकर बाहर चला गया तो बाहर एक शहरी लड़के को सूट बूट पहने सामने मौजूद पाकर हैरान रह गया। वो लड़का सैफ से लिपट गया। वाह भाई वाह, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। सैफ दिल में सोच कर रह गया, चेहरा तो जाना पहचाना लगता है मगर तुम हो कौन? लड़के? सैफ ने लड़के को दूर करते हुए खुद से हैरत से कहा तो वह हंस पड़ा और बोला, अपने बचपन के यार दोपहर को भूल गए चाचा? लड़के ने याद दिलाया तो सैफ ने अपने जहन पर जोर दिया। वही दोपहर जिसे हर साल नतीजा आने के बाद मास्टर साहब कहते थे तू फेल है। सैफ को बड़ी अहम बात याद थी। आहो वही। नौजवान लड़का हंस पड़ा। वो तो शहर चला गया था। सैफ के कहने पर वो खुश मिजाज लड़का हंसकर बताने लगा, जी जी मैं शहर से ही आया हूँ, मुझे गांव घूमने का बड़ा शौक है। कोई रिश्तेदार तो है नहीं, अब्बा ने बड़ी मुश्किल से आपका एड्रेस हासिल करके मुझे आपके पास भेज दिया। यह तो बड़ी चंगी गल होगी। चल अंदर चल, यहाँ धूप में ना ठहर। आखिरकार सैफ उसे घर के अंदर ले जाने का ख्याल ले ही आया। उसी वक्त रोहा के ससुराल वाले भी उसका नाप लेने आए थे। अनाया मेहमानों को ठंडा शरबत सर्व कर रही थी। जो ही थके हारे शहरियार ने घुंघरियारे बालों और सुनहरी रंगत वाली लड़की को देखा, वो तो आंखें झपकना भूल गया। उसके चेहरे पर फैली सादगी उसका दिल ले उड़ी। शरबत? अनाया ने करीब आकर गुस्से भरे अंदाज में कहा तो उसने हड़बड़ाकर गिलास उठाया और एक ही सांस में चढ़ा गया। शहरियार जो घूमने के लिए अब्बा के दोस्त के घर आया था, उसे शादी वाले घर में हजारों काम करने पड़े तो बेचारा गांव आने का मकसद ही भूल गया। आने वाले वक्त में अनाया के लिए अपना रिश्ता भेजने का ख्वाहिशमंद था, सो अच्छा बनने के चक्कर में किसी काम से इनकार नहीं कर सकता था। खुशी खुशी सारे काम करता। रीमा बिला चूंच रां किए खेत से घर तक का 5वां चक्कर लगाते उसे देखती तो खुशी से कहती, माशाल्लाह, माँ ने कैसी प्यारी तरबियत की है बेटे की। मजाल है जो कभी किसी काम को इनकार तो दूर माथे पर बल भी लाया हो ये बच्चा। शहरियार तारीफ पर बज़ाहिर मुस्कुराता मगर दिल में खून के आंसू उतार कर सोचता, खाला जान मुझे एक बार बतौर दामाद कबूल कर लो, फिर अगर तुम्हें गांव के करीब भी नजर आ गया तो मेरा नाम बदलना। अगले दिन मेहंदी की रस्म थी। रीमा का दिल बेटी को रुखसत करने का सोचकर ही घबरा रहा था।
सैफ बीवी को दिन रात दिलासे दे रहा था कि बेटियां पराया धन होती हैं। हर इंसान को बेटी एक न एक दिन ज़रूर रुखसत करनी होती है। मेहंदी की रस्म में रोहा के ससुराल से कई लोगों ने शिरकत की। शहरयार ने हर काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हकीकी मानों में सैफ को बेटे की कमी महसूस नहीं होने दी। रोहा लंबा घूंघट निकाले मेहमानों के बीच बने छोटे से स्टेज पर रस्म करवा रही थी। गुड़िया और अनाया मोतिये के जेवरात और सब्ज रंग के सादा से चेहरे के साथ बेहद खूबसूरत दिखाई दे रही थी। दोनों ने एक जैसे लिबास का इंतखाब किया जो दोनों पर बड़ा जच रहा था। अनाया शहरयार की निगाहों का मरकज बनी थी। एक बार वो इस बात को महसूस करके उसे घूर भी चुकी थी, जिसका शहरयार पर रत्ती बराबर असर नहीं हुआ। रात गए वो लोग मेहंदी से फारिग हुए और काम निपटाकर जल्दी सो गए। रोहा की रुखसती का दिन भी आ गया। उस रोज वो सभी बहुत दुखी और गमज़दा थे। रीमा चुप चुप कर 2 बार रो चुकी थी। सैफ भी खामोश और चुप था। शहरयार बगैर कहे सारी दौड़ धूप कर रहा था। अनाया और गुड़िया ने गांव की दूसरी लड़कियों से मिलकर ताज़ा फूलों और मिठाई से बाराती खवातीन का इस्तकबाल किया, जबकि मर्दों का इस्तकबाल शहरयार ने ताज़ा फूलों के हार और मिठाई से करके सैफ को एक बार बेटे जैसा मान दिया। उसकी आंखों में शहरयार के लिए शुक्रगुजारी और बहुत प्यार था। अनाया और गुड़िया ने रोहा को जल्द वलीमे पर मिलने की याद दहानी करवाई और तसल्ली देने के बाद खूब रोते हुए रुखसत किया। बारात ने वापस दूसरे गांव भी जाना था, सो शाम से पहले ही दिन की रोशनी में प्रोग्राम ख़त्म कर लिया गया और वो लोग सैफ से इजाज़त लेकर रुखसत हो गए। अगले रोज़ रोहा के बगैर घर बहुत सोना लग रहा था। अनाया और रीमा दोनों माँ बेटियाँ खामोशी से घर के काम निपटा रहे थे, जबकि गुड़िया सो रही थी। अनाया ने उसे जगाया तो वो कुछ देर बाद उठ गई। घर के काम ख़त्म हुए तो अनाया और गुड़िया को कल वलीमे में ले जाने के लिए अपने कपड़ों के साथ मैचिंग चूड़ियों और ज्वेलरी की फिक्र हो गई, तो वो दोनों उसमें मसरूफ़ हो गई। शहरयार का बैग तैयार कर देना, मैंने उसके सारे कपड़े धो दिए, अच्छी तरह से तय करके उसका बैग तैयार कर दो। कल वलीमे से वापसी पर वो सीधा शहर जाने के लिए निकलेगा। रीमा ने कहा तो अनाया के अंदर तक उदासी फैल गई। 2 गैर इंसानी वजूद तितली के रूप में खला में सफ़र करते हुए मीलों सफ़र तय करके उस जगह पहुँचे थे। बेटी की खुशबू ने उस जगह खींच लाई थी जहाँ उनकी बेटी गुलरुख गुड़िया के रूप में अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। ये तवील सफ़र एक ज़रा सी भूल की सज़ा था, वो भूल जिसकी वजह से उन्होंने अपनी गुलरुख को खोया था और फिर उसकी तलाश में सालों सफ़र किया था। वक्त बड़ा बेरहम होता है, सब कुछ बदल कर रख देता है। उन दोनों ने गुड़िया को देखकर हवा में बहुत देर तक रक्स किया था। कोई और वक्त होता तो गुड़िया तितलियों के ताक़ब में ज़रूर दौड़ती, मगर उस वक्त उसे अपने नए कपड़ों के साथ पहनने के लिए जूतों का इंतखाब करने की फ़िक्र थी, और उसके चेहरे से बिल्कुल ऐसे लगता था कि उस वक्त वो उसकी ज़िंदगी का अहम तरीन मसला यही है। अगली सुबह तक गांव जाने के लिए सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई थी। गुड़िया तैयार हुई तो उन 2 तितलियों ने दूर से देखकर उसकी नज़र उतारी थी। वो इतनी खूबसूरत दिखाई दे रही थी कि उसे देखकर किसी परी का गुमान होता था। वो लोग रोहा के ससुराल जाने के लिए निकल गए। रास्ते में कब्रिस्तान आया तो सैफ ने गाड़ी रुकवा ली। बस हमें दुआ करने के लिए रुकना है। वो सब उतर कर खड़े होकर दुआ के लिए हाथ उठाने लगे। गुड़िया सैफ के पास आकर खड़ी हो गई और आहिस्ता आवाज़ में बोली, बाबा, मैं आपको इसी जगह से मिली थी ना? बिल्कुल, हम इसी कब्रिस्तान में मिले थे। इस बात का एक सबूत ये भी है कि तुम्हारे नाम का कोई फूल हमारे पास नहीं है, मगर ये बातें हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखती। सैफ ने मुस्कुराकर वजाहत दी, क्या आप मुझे इस जगह छोड़कर जा सकते हैं? गुड़िया ने मुस्कुराकर बाप की तरफ देखा और उसकी आंखों में नमी चमकी तो उसने अपने दुआ के लिए फैले हाथों से अपनी आंखें छुपा ली। दुआ करने के बाद वो अपने सफ़र पर रवाना हो गए। रोहा अपने घर वालों से बड़ी बेकरारी से मिले थे। वो अपनी दोनों बहनों के बगैर उदास ज़रूर थी, मगर अपनी ज़िंदगी में खुश थी। उसे मोहब्बत करने वाला शोहर और एक अच्छा कदर करने वाला ससुराल मिला था। सैफ और रीमा ने बेटी को खुश देखकर खुदा का शुक्र अदा किया। वो 1 हफ्ते के लिए उसे अपने साथ लेकर जा रहे थे। शहरयार की छुट्टियां ख़त्म होने वाली थी, सो वो तकरीब ख़त्म होने के बाद वहीं पर रीमा और सैफ से अलविदाई मुलाकात करके और अनाया को आंखों ही आंखों में जल्द वापस आने का पैगाम देकर शहर के लिए निकल गया। उसके जाने के बाद गुड़िया ने अनाया के चेहरे पर फैली उदासी को नोट किया था, मगर वो खामोश रही और चाहती थी कि अनाया खुद उससे अपने दिल की बात कहे। अगर वो उसे कुछ नहीं बताना चाहती
تو گڑیا بھی اسے بلا وجہ سوال نہیں کرنا چاہتی تھی، سو اس نے دل ہی دل میں بہن کے دل کے سکون کے لیے دعا کی۔ وہ لوگ رات کے اندھیرے چاروں طرف پھیلنے سے پہلے ہی گاؤں واپس آ گئے تھے۔ ریما روحا کو دیکھ کر خوش اور مطمئن تھی۔ گڑیا، روحا اور انایا کمرے میں بیٹھی کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ گڑیا ہنستے ہوئے بہت خوبصورت لگتی تھی۔ کھڑکی کے اندر سے جھانکتی دو تتلیوں نے دل سے اس ہنسی کو ہمیشہ قائم رکھنے کی دعا کی اور یہ سوچ کر لمبی اڑان بھری کہ جس طرح گزرا ہوا وقت واپس نہیں آتا، بالکل اسی طرح جن پیاروں کو ہم زندگی کے کسی موڑ پر کھو دیں تو وہ واپس نہیں ملتے، ان کا ساتھ ریت کی طرح ہاتھ سے پھسل جاتا ہے اور زندگی ان کے بغیر ہمیشہ ادھوری رہ جاتی ہے۔ پھر اس ادھورے پن کو جھیلنا ہی ہمارا مقدر بن جاتا ہے۔ ساتھ کو بچا کر نبھانا ضروری ہے، ورنہ ٹوٹ جانے والا ساتھ ٹوٹ جانے والی ڈور کی طرح دوبارہ کبھی نہیں ملتا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اردو ریڈیو کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔